Hallelujah. Praise the Lord, church. Hallelujah. Let's come into His presence once again. Lord has given us one more Sunday to worship Him. Hallelujah. Hallelujah. आइए हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में आए, कहें परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं तेरी आराधना करना चाहता हूँ। फिर एक बार इस इतवार के दिन हम यीशु मसीह का स्वागत करेंगे, उस पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे हमारे बीच। हालेलुया। रूह पाक, तू इस जगह को, हमारे घर को परमेश्वर पूरी तरह से अपनी आत्मा से भर दे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरी आत्मा के लिए, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए परमेश्वर। जैसे हम तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर, हम चाहते हैं कि परमेश्वर आप हर एक घरों में परमेश्वर, हर एक घर में जहां पर भी हमारे लोग परमेश्वर इस वक्त आराधना के लिए खड़े हैं परमेश्वर, आपकी उपस्थिति परमेश्वर उस घर को भर दे परमेश्वर। अगर कुछ ऐसी बातें उस घर में हो परमेश्वर जो आपके तरीके से ना हो परमेश्वर, निकाल दे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज परमेश्वर हो जाने दे यीशु मसीह। आज हम जैसे हम आपके आराधना में जाते हैं परमेश्वर, हमारी अगुवाई कर। Lead us, Lord Master. Lead us to your cross, Abba Father, this morning. Thank you, Abba Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Let's worship Him. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus.
बारिश होगी रूए पाक के बादल से खुल जाएंगे मैल भी मल भी अंदर से बारिश होगी रूए पाक के बादल से खुल जाएंगे मैल भी मन भी अंदर से Come on, lift it up.
God has come. अगर आपके दिल में कोई मैल हो तो वो धुल रहा है इस वक्त. हालेलुया. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Pour out your Spirit, Lord Jesus. Pour out, Lord Jesus. Keep pouring fresh on us, oh God, Jesus, this morning. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lord, I see burdens going away, Lord Jesus. Lord, I see sick getting healed, God, Jesus. In spirit, things happening. There is a lot of movement in your houses today. The Lord is moving tremendously. Hallelujah. Keep worshiping. अपने हाथों को उठाइए. अपनी आंखों को बंद करें. इधर उधर ना देखें. यीशु मसीह की ओर देखें. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Keep pouring out fresh on us, Lord. Keep pouring out, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Master, for your visitation yet again this morning. Thank you, Master, for pouring out in abundance, Lord. Lord, we have people with different problems, Lord Jesus, in our houses. A few of us will still speak to you, Lord Master, but a few of us, they don't want to talk about it, Lord Jesus. Lord, I pray, Master, that you touch every soul in that kinds, Lord Jesus, who does not talk, but they have suppressed things inside their hearts, God Jesus. Lord, they are burdened, Lord Master, with different things, different aspects of life. बहुत सी ऐसी वैसी बातें परमेश्वर जो उनके जीवन में हो रही हैं, जो वो किसी से कहना नहीं चाहते, वो बोल नहीं पाते. परमेश्वर, तेरे रूह से परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर कि आज उन लोगों को परमेश्वर तू उनके अंदर से चंगाई देगा. परमेश्वर, उनके अंदर के रूह को तो अब ठीक करोगे परमेश्वर इस वक्त, क्योंकि आपने कहा कि आप मैल को धो दोगे परमेश्वर. ऐसी मैल परमेश्वर जो बरसों से अंदर बैठा हो परमेश्वर, उस मैल को परमेश्वर आप निकाल रहे हो इस वक्त. Lord, you are removing that stubborn dirt, Lord Jesus, from the hearts of our people, Lord Master, from our brothers and sisters, Lord Jesus, Father God, who are burdened during these days, God Master. Thank you, Master. Thank you, Jesus. Lord, we want to thank you, Master, for this time. Lord, we want to thank you for you spoke to our hearts once again this morning. Jesus, we lift your name up high once again. We submit our church into almighty hands, Lord Master. Every person who's standing right in front of the screens, Lord Jesus. Every child, Lord Master, who's attentive to your word, to your songs, Lord Master. Father, we submit them into your almighty hands this morning. Let your Holy Spirit fall on everyone, Lord Jesus. Let every person experience that difference, Lord Master. When you come, darkness has to flee. If there is any dark corners in our houses, if there is any dark corners in our lives, let that darkness flee as Jesus, the light, is already in the house. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Thank you, Lord. धन्यवाद, धन्यवाद. जैसे हम आगे बढ़ते हैं परमेश्वर, हम मांगते हैं परमेश्वर आपसे आपकी उपस्थिति, हमें आगे बढ़ने की शक्ति परमेश्वर. Lord, we ask of your special favor upon us, God Master, as we lead the congregation into worship. Thank you, Jesus. In Jesus, the most precious name, we pray. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Church, जोरदार तालियों से हम यीशु मसीह का स्वागत करेंगे. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord. आइए हम एक जोरदार स्तुति करेंगे यीशु मसीह के साथ. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो,
मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है धन्य कहता रहो। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। ओ ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। वही मेरे अधर्मों को क्षमा करता है, वही मेरे रोगों को चंगा करता है। धन्य हो वही मेरे अधर्मों को क्षमा करता है, वही मेरे रोगों को चंगा करता है। वही तो मेरे प्राण को नाश होने से बचाता है। वही तो मेरे प्राण को नाश होने से बचाता है। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। Come on everybody, put your hands together for the Lord is in the house. Hallelujah. Jesus is in the house. Hallelujah. Hallelujah. सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल को खींच के मुझे उबारा। धन्य हो सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल को खींच के मुझे उबारा। मेरे पैरों को दृढ़ किया है, चट्टान पर खड़ा किया है। मेरे पैरों को दृढ़ किया है, चट्टान पर खड़ा किया है। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है धन्य कहता रहो। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। Come on everybody, अपने हाथों को बजाकर धन्य कहेंगे परमेश्वर को। हालेलुया। धन्यवाद करेंगे यीशु मसीह को, क्योंकि यीशु मसीह हमारे बीच है। हालेलुया हालेलुया। यहोवा के दूतों उसको धन्य कहो। सारे सृष्टि उसको धन्य कहो। धन्य हो यहोवा के दूतों उसको धन्य कहो। सारे सृष्टि उसको धन्य कहो। उसके राज्यों के सब स्थानों में यहोवा को धन्य कहो। उसके राज्यों के सब स्थानों में यहोवा को धन्य कहो। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है मुझको धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है धन्य कहता रहो। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। धन्य धन्य कहो। ऐ मेरे मन यहोवा को 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 धन्य धन्य कहो।
यहोवा के दूतों उसको धन्य कहो, ऐ सारे सृष्टि उसको धन्य कहो। धन्य हो, धन्य हो, ऐ यहोवा के दूतों उसको धन्य कहो, ऐ सारे सृष्टि उसको धन्य कहो। उसके राज्यों के सब स्थानों में यहोवा को धन्य कहो। उसके राज्यों के सब स्थानों में यहोवा को धन्य कहो। यहोवा को धन्य धन्य कहो। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। प्रियो, यीशु मसीह अपने आप को अपने नाम से जानता है। हालेलुया। बाइबल सेज ही नोज यू बाय योर नेम। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह पर केंद्रित हो इस वक्त, हालेलुया, अगर आपका तन मन धन यीशु मसीह के पास हो इस वक्त, तो आप ये जान रहे होंगे कि यीशु मसीह आपको इस वक्त बुला रहा है। यीशु मसीह आपको इस वक्त आपके नाम से बुला रहा है। वो आपका उठना, आपका बैठना, आपका चलना, हर एक चीजों को जानता है। हालेलुया। आइए हम यीशु मसीह की उपस्थिति में बने रहें। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हृदय को यीशु मसीह के लिए खोल दे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को? क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को? तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। चोराया चोरी करने
यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले ले कर, तुझे यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले ले कर, तुझे यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले ले कर, वो तुम्हारे नाम से तुमको जानता है। हालेलुया। तेरा नाम से वो तुझे जानता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। नाम ले ले कर, तुझे यीशु बुला रहा। जैसे भी है हम, यीशु मसीह हमें बहुत चाहता है। हालेलुया। कभी पूछा है अपने आप से कि क्यों चाहता है हमारा परमेश्वर हमें इतना? हालेलुया। जैसे आप अपने बच्चों को चाहते हो, वैसे ही हमारा परमेश्वर है जो हमें चाहता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे तू इतना प्यार? मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे तू इतना प्यार? उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे तू इतना प्यार? मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे तू इतना प्यार? Thank you, Jesus. कई बार हम यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पर नहीं चल पाते, हम अपना रास्ता भटक जाते हैं, इतना कुछ बोल देते हैं यीशु मसीह या अपने परमेश्वर के खिलाफ भी, फिर भी यीशु मसीह हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि वो कभी ना छोड़ने वाला, कभी ना त्यागने वाला यीशु मसीह है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। तेरी राहों पर चलते चलते कहीं बार मेरे कदम भटक गए। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे तू इतना प्यार? मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे तू इतना प्यार? मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे तू इतना प्यार? कई बार तुझे खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना दिया। कई बार तुझे खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा
मुझसे तू इतना प्यार, तू क्यों करता मुझसे तू इतना प्यार, तू क्यों करता मुझसे तू इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे तू इतना प्यार। Thank you Jesus for loving us, Lord Master. Thank you Master for being our support, Lord Master. धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह आपका, क्योंकि आप अपने हमारा एक ढाल बनकर हमारे साथ चलते हो। हमारा साथ परमेश्वर आप हर एक वक्त देते हो। ऐसा परमेश्वर आप हो परमेश्वर। When we have never remained faithful with you, you continue to be faithful to us, Lord Jesus. As human beings, Lord Master, we go astray many a times, Lord Master, but you, your love, Lord Master, pulls us back and gets us on the track, Lord Jesus. Thank you, Master. Thank you, Master. धन्यवाद परमेश्वर आपके इस प्यार के लिए। धन्यवाद परमेश्वर आपके इस आशीष के लिए। धन्यवाद परमेश्वर। हम अपने आप को, कलीसिया को परमेश्वर, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर, इस वक्त जो परमेश्वर आप कुछ लोगों को छू रहे हो परमेश्वर, हम उन सबको आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। उनके हृदयों से बातें कर परमेश्वर, उनके हृदयों से बातें कर परमेश्वर। अगर परमेश्वर ऐसी कुछ बातें उनके हृदयों में हो परमेश्वर, ऐसे कुछ मेल अगर उनके घर में, उनके हृदय में बैठा हो परमेश्वर, तो हम प्रार्थना करते हैं कि आज उस मेल को आप खत्म कर देंगे यीशु मसीह के नाम से। Thank you Jesus. Thank you Master. Thank you Lord. Thank you Jesus for your visitation once again. Thank you Master for this morning once again. Thank you Abba Father. We commit ourselves into your almighty hands. Father God, the word that's going to come, the offering that's going to come, Lord Jesus, the bread and wine, Lord Master. Father God, everything, Lord Jesus, into almighty hands, Lord Master. Take control, Lord Jesus. The remaining portion, Lord Master, of this worship, we submit it to your almighty hands, Lord Master. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Let your spirit continue to move, Lord Master, in the houses, Lord Jesus. People who are hearing us far away, far distance, Lord Jesus, in this country, on the globe, Lord Jesus, wherever they are, Lord Master, let your touch be experienced, Lord Master. Thank you, Jesus. We send your healing, Lord Master. We send your word, Lord Master. It never returns void, Lord Jesus. Thank you, Master. Thank you, Jesus. In Jesus, the most precious name we pray. Amen. Amen. We worship you, Lord, King of Kings, Lord. We worship you, Lord. You called us, Lord. That's why you love us, Lord. Sure, we love you, Lord. You loved us first, God. Without you, we are nothing, God. You are a God who heals us, Lord. Thank you, Abba Father. Our spirit cries to you, Abba Father. Oh, we worship you, King of Kings, Lord. Christ in us, the hope of glory. मैंने पूछा प्रभु तू क्यों करता प्यार मुझसे इतना. Oh, we don't know, Lord, you loved us so much that you gave your begotten Son before us, God. Your only and only Son for us, the Lord Jesus Christ, God. Oh, it's because of that love, Lord, and that you have shed abroad, Lord, through the Holy Spirit. Oh, we worship you, King of Kings, God.
Thank you, Lord. Thank you, Lord. धन्यवाद Thank you. प्रभु, Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Jeremiah 33 verse 6 says, Behold, I will bring it to it health and healing, and I heal them and reveal to them the abundance of prosperity and security. यिर्मयाह का 33 अध्याय और 6 वचन कहता है, देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। Hallelujah. God gives us health परमेश्वर हमें स्वास्थ्य को देता है and healing और चंगाई को देता है and the abundance of prosperity and security. और सफलता को देता है। Before we go to anybody, when we go to our God, He hears us. और हम परमेश्वर किसी और के पास जाने से पहले हम परमेश्वर के पास जाए क्योंकि वो हमें सुनता है। Because with the more than anybody else, we can go to our God. और किसी और से ज्यादा हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। And the Lord is the one, He is our healer. परमेश्वर ही हमारा चंगा करने He is वाला our है greatest physician. और वो सबसे महान फिजिशियन And है। when we call out to Him, He hears us. और जब हम उसे पुकारते हैं तो वो हमें सुनता है। And when we thank Him, just say, Thank you, Lord, that you are with us, God. और आइए हम सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद दे क्योंकि वो हमारे साथ है। Yeah, whenever we get something, we say, Lord, thank you. और जब भी हमें कुछ मिलता है तो हमें कहना चाहिए कि परमेश्वर धन्यवाद दो। Yes, Jeremiah 33 verse 11 says, यिर्मयाह का 33 अध्याय और 11 वचन कहता है, Give thanks to the Lord of hosts, for the Lord is good, for His steadfast love endures forever. और 11 वचन कहता है, सेनाओं के यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। Before you grumble or you say that you have a sickness, just thank God that He has kept you till today. और कुड़कुड़ाने से पहले या ये कहने से पहले कि आप बीमार हो, परमेश्वर को धन्यवाद दो क्योंकि उसने आपको संभाले रखा है। And just believe God to do it. और सिर्फ विश्वास करो कि परमेश्वर कर देगा। That's what Jeremiah 33 verse 6 says. He will bring health and healing to us. और यही यिर्मयाह का 33 अध्याय और 6 वचन कहता है कि वो हमें स्वास्थ्य और चंगाई को लाएगा। Before you pray or ask anything, just thank God what has happened. और आप प्रार्थना करने से पहले और पूछने से पहले सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद दे जो भी हुआ उसके लिए। Thank you for that person. Because thanking brings God's presence. God knows that you are thankful of it. क्योंकि जब आप धन्यवाद करते हो तो परमेश्वर की उपस्थिति आती है। And God, He hears you. और परमेश्वर तुम्हें सुनता है। Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord, that you have healed Sashi's mom, Lord. And she's at home the very day और हम from the धन्यवाद करते हैं hospital. परमेश्वर क्योंकि तूने शशि की माता को चंगाई दी है। We thank you, Lord, for Sashi and her mom, Lord. और हम शशि और उसके माता के लिए Send your धन्यवाद guardian करते हैं। angels to minister to her about salvation. और परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेज परमेश्वर उनके पास ताकि वो उद्धार के बारे में She बात would कर know the पाए truth and the truth would set her free, और God. उसे सच्चाई जानने में मदद कर और उस सत्य को परमेश्वर उनके जीवन को बदलने में मदद कर। Thank you, Lord, for Vijay Arsule's mom, Lord, Rukmini, Lord. हम विजय अरसुले की माता रुक्मिणी के लिए भी प्रार्थना करते Oh, हैं Lord, the son cries for his mom, Lord. और बेटा अपनी माता के लिए रो रहा है Lord, परमेश्वर she would not die, Rukmini would not die, but would live to declare the works of God. और वो मरेगी नहीं परंतु जीवित रहेगी और तेरे कामों का वर्णन कर पाएगी By faith she would live, और Lord. विश्वास के द्वारा वो Every जिएगी। fear which is not yours would go in the name of हर एक Jesus. डर जो तेरा नहीं है वो चले जाए यीशु मसीह के नाम Oh, we से। know, God, you are a life-giving spirit, Lord. और हमें पता है परमेश्वर की तू जीवन देने वाला We पवित्र live आत्मा by है faith, God. और हम विश्वास के द्वारा जीते हैं। Thank you, Lord, for Bhumika, Lord. हम भूमिका के लिए धन्यवाद Thank you for करते हैं। healing her, Lord. हम धन्यवाद करते हैं उसको चंगाई देने के Thank लिए। you for, Lord, the lump is gone by the blood of हम Jesus. धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने जो लंप है वो निकाल दिया यीशु मसीह के नाम Thank से। you for, according to Jeremiah 33 verse 6, you will bring health and healing and reveal the abundance of it, Lord. और हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की यिर्मयाह 33
और का 6वें वचन के अनुसार परमेश्वर तू परमेश्वर चंगाई को लाएगा और Do स्वास्थ्य it को लाएगा according to your word, Lord. और अपने वचन के अनुसार कर। Oh, we believe that you can do it, Lord. हम विश्वास करते हैं कि तू करेगा। Thank you, Lord, for Captain Charles D'Souza, Lord. हम कैप्टन चार्ल्स डिसूजा के लिए धन्यवाद करते हैं Releasing him from, Lord, from that ventilator, Lord. और परमेश्वर उसको उस वेंटिलेटर से निकाल दे। He would, Lord, he would send forth your guardian angels to minister to him about salvation, और Lord. परमेश्वर तू अपने स्वर्गदूत को भेजो उनको उद्धार के बारे में Lord, बताएंगे you give him the breath of God in him, Lord. और परमेश्वर तेरी श्वास को डाल उनके Have अंदर mercy, God. और उनके ऊपर दया कर Lord, release him and set him free by the blood of Jesus. और उनको छुटकारा दे परमेश्वर। Thank you, Lord. You would breathe on his own. Every weakness is gone by the blood of Jesus. और हर एक कमजोरी चले जाए यीशु मसीह के लहू के द्वारा। Thank you, Lord. Jaya from Jharkhand, Lord. और हम जया के लिए धन्यवाद करते हैं जो झारखंड से है Lord, she wants a baby, Lord. From last 2 years, she's not having it, Lord. और परमेश्वर वो एक माता बनना चाहती है परमेश्वर पर पिछले 2 साल से वो नहीं बन पा Lord, रही she है sent a request through Vinita, God. और उसने विनीता के द्वारा एक विनंती Lord, we भेजी pray. है You said, ask and it shall be given to you. और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि तूने कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया Open her जाएगा womb, God, that she would have bear a baby by faith, और उसके God. गर्भ को खोल परमेश्वर And Lord, release and remove every obstacle by the blood of Jesus, God. और हर एक रुकावट को हम निकालते यीशु मसीह के लहू के Just नाम as से Hannah prayed, Lord, you fulfill the desires of her heart, God. और परमेश्वर जैसे हाना ने प्रार्थना किया परमेश्वर तू उसके हृदय की इच्छा को पूरा कर Nothing is impossible with you, कुछ भी God. असंभव नहीं है तेरे You लिए are a God of impossible things, तू Lord. हम परमेश्वर है हमारा जो असंभव चीजों का When the परमेश्वर church है prays, you bring it, Lord. जब कलीसिया प्रार्थना करती है तब तू परमेश्वर कार्य करता है Thank you for Zephaniah, also little baby, Lord. You know she fell, Lord, and there was by faith, Lord, every swelling, Lord, everything you prevented her from further injuries. और हम दफना के लिए भी धन्यवाद करते हैं जो गिर गई परमेश्वर हर एक परमेश्वर जो भी स्वेलिंग है परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि वो 2 नहीं years आए baby, Lord, Lord, she know you before she was born into her mother's womb. You know her frame was not hidden from you, और God. परमेश्वर उसकी माता के गर्भ में वो पैदा होने से पहले तू उसे जानता था Lord, you take care of her, Lord. तू परमेश्वर उसका ख्याल रख Oh, we thank you for Zephaniah, Lord. और हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर दफना के लिए Lord, we just thank you, Lord, for Nehemiah, Lord. और हम नेहमिया के लिए धन्यवाद Oh, करते हैं Lord, you know her, Lord. और परमेश्वर तू उसे जानता है Lord, bless these children's, Lord. और परमेश्वर इन बच्चों को आशीष दे Oh, we thank you for them, God. धन्यवाद करते हैं Thank परमेश्वर you, के Lord, लिए। for Namrata and Harshila, Lord. Give them jobs, God. और परमेश्वर नम्रता और हर्षला के लिए धन्यवाद करते हैं कि उन्हें नौकरी दे Open doors that no man can close, और God. ऐसे दरवाजों को खोल जिसे कोई मनुष्य बंद नहीं कर Nothing is सकता impossible with कुछ you, भी God. असंभव नहीं है You are तेरे a लिए। God of impossible things, तू God. असंभव चीजें करने वाला परमेश्वर Lord, है release them the right job with right company, Lord, right hospital, Lord. और परमेश्वर जो उनको सही नौकरी को दे Oh, we believe, Lord. और परमेश्वर हम विश्वास Lord, we करते हैं thank you for all the youngsters, Lord, every girl and every boys who wants to get married, Lord. और हर एक परमेश्वर जवान व्यक्ति के लिए धन्यवाद करते हैं हर एक लड़का और हर एक लड़की जिसको शादी करनी है Lord, release them the right partner, Lord, in their life, Lord. और परमेश्वर उनको एक सही परमेश्वर पार्टनर दे Help them to seek your will, God. और परमेश्वर उन्हें मदद कर कि वो Seek तेरे your righteousness. परमेश्वर ने मदद करके वो तेरी इच्छा को जान पाए And they would तेरे परमेश्वर धार्मिकता की खोज कर पाए Yes, Lord. Now all these things shall be added unto you, God. और सारी चीजें परमेश्वर ने दी जाएगी Nothing is impossible with you, और तेरे God. लिए कुछ भी असंभव नहीं Thank you, है Lord, Father, for every elders in the church, Lord. Take care of them, God. और हम कलीसिया के हर एक अगुवे के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि उन्हें तू संभाले रख Give them strength to their bones,
bones, God. और परमेश्वर उनके हड्डियों में जान को डाल Meet every need and desires of their heart, God. और उनके हृदय के हर एक इच्छा को तू पूरा कर Thank you, Lord, for all the churches, और God. सारे कलीसिया के लिए प्रार्थना You करते said, हैं I'll build my church and the gates of Hades will not prevail. और परमेश्वर तूने कहा कि मैं अपने कलीसिया को बनाऊंगा और अधलोक के फाटक उसके खिलाफ नहीं आ Thank you, पाएंगे Lord, for every family, every individual in the church, God. हर एक परिवार और हर एक व्यक्ति के लिए हम धन्यवाद करते Help हैं them to meditate on your word, Lord, day and night, God. और परमेश्वर मदद कर परमेश्वर कि वो वचन पर मनन कर पाए दिन और Seek your रात righteousness, God. और परमेश्वर अपने परमेश्वर उन्हें मदद कर कि वो तेरे धार्मिकता की Seek खोज your कर face, पाए God. कि वो तेरे चेहरे की खोज कर पाए Every family, every individual that has an unbelieving husband and wife or daughter or son, God, we pray, God, send your guardian angels to minister to them about salvation, और Lord. परमेश्वर हर एक परिवार परमेश्वर जिसके पास एक ऐसा पति या ऐसी पत्नी है जो विश्वास नहीं करती परमेश्वर तू अपने स्वर्गदूत को भेज जो उद्धार के बारे में बात Yes, करेगा Lord, they would know, their knees would bow, their tongues would confess Jesus is हाँ Lord. परमेश्वर वो जाने परमेश्वर उनका घुटना टेके उनके उनका Thank you, जुबान कबूल करेगी Thank यीशु you, Lord, मसीह for the third परमेश्वर wave gone by the blood of Jesus. और हम प्रार्थना करते हैं कि थर्ड वेव चले जाए यीशु मसीह के Every नाम से trace, every numbers would diminished by the blood of Jesus. और हर थर्ड वेव के जितने भी गिनती है केसेस है वो चले जाए यीशु Thank मसीह you, के Lord, नाम for से every caste, every creed, every nation, Lord, every tongue, Lord. और- Every knee shall bow, every tongue shall confess Jesus is Lord. और हम हर एक जाति जबान और देश के लोग के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हर एक जबान कबूल करेगा हर एक घुटना टेकेगा ये की और कबूल करेगा कि यीशु मसीह खुदा Lord, the है gospel would be reached, Lord, to every person, Lord. और तेरा सुसमाचार हर एक व्यक्ति के पास जाए Lord, give us boldness to speak to others about you, और God. हमें धैर्य दे साहस दे परमेश्वर कि हम दूसरों के साथ तेरे बारे में बोल पाए Yes, Holy Spirit, give us words to speak, Lord. पवित्र आत्मा हमें शब्द दे बोलने के लिए Help us to know that you are there with us, God. हमें मदद कर ताकि हम जान पाए कि तू हमारे साथ है To share about you to our friends, God, to our relatives, God. ताकि हम हमारे मित्र हमारे रिश्तेदार को तेरे बारे में बता Wherever पाए we put our life step, Lord, blessings would flow. और जहाँ पर भी हम अपने कदम को रखे परमेश्वर आशीष को बहने दे Yes, Lord, blessing would flow in and out, Lord. और आशीष को बहने दे अंदर और Thank you, बाहर Lord, for every husband and wife relation would be restored by the blood of Jesus. और हर God. एक पति और पत्नी के संबंध परमेश्वर फिर से जुड़ जाए यीशु मसीह के नाम Yes, से Lord, nothing is impossible with you, और कुछ भी God. असंभव नहीं है तेरे लिए Lord, we know, God, you are a God of impossible things. परमेश्वर God. हम जानते हैं कि तू असंभव चीजें करने वाला Thank you, परमेश्वर है Lord, for the word that is going to come, God. और धन्यवाद करते हैं वचन के लिए जो आने वाला है Lord, bring your word, Lord, and bring it for your purpose, और God. परमेश्वर तेरे वचन को लेके आ और तेरे मकसद के लिए लेके आ Bring for the glory of God, Lord. और परमेश्वर तेरी महिमा के लिए लेके आ Every word that is spoken, Lord, every spirit that hears would be touched, God, and would be overwhelmed, God, and would they, Lord, would edify and encourage and strengthen, और God. हर एक वचन जो बोला जाता है यहाँ से परमेश्वर वो हर एक आत्मा को जो सुन रहा है उसे स्पर्श करे परमेश्वर Lord- और उसे उत्तेजन दे Lord, you would discipline them and bring them into your presence, और God. परमेश्वर उन्हें अनुशासन मिला और अपने उपस्थिति में लेकर आ Lord, we live by faith and not by sight, हम God. विश्वास से जीते हैं परमेश्वर We thank हमारी you, दृष्टि Lord, से for नहीं the man of God, Lord, would और- come into your presence with double portion of your anointing, और God. परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के दास के लिए जो तेरे उपस्थिति में आए Yes, Lord, that your word that comes out from the mouth of God, Lord, every spirit being would hear, Lord. Faith would arise, Lord. Faith comes by hearing and hearing the word of God, Lord. और तेरा वचन परमेश्वर जो आएगा परमेश्वर हर एक व्यक्ति उसे जो भी सुनेगा परमेश्वर उनके जीवन में विश्वास बढ़े Thank you for परमेश्वर the church, Lord, धन्यवाद करते that the कलीसिया church के लिए। overcame by the blood of the Lamb and the word of their testimony, God. कलीसिया जीवे कि परमेश्वर कलीसिया जयवंत हुई परमेश्वर मेमने के लहू के द्वारा उनके गवाही के वचन के द्वारा Yes, Lord, let every church would be added by your people, Lord.
परमेश्वर हर कलीसिया को परमेश्वर बड़ा लोगों के द्वारा Yes, Lord, there would be testimonies every Sundays to bring glory to your name, और हर God. रविवार को गवाही आए ताकि तेरे नाम को महिमा The मिले church would overcome by the blood of the Lamb, and we are the church, God. और कलीसिया जो है वो मेमने के लहू के द्वारा जयवंत हो पाए। Oh, we thank you, Lord, for raising up, Lord, apostles, prophets, evangelists, Lord, और हम धन्यवाद pastors and करते हैं teachers, God. और हम धन्यवाद करते हैं ऊंचा उठाने के लिए जितने भी प्रॉफिट्स है apostles है evangelist है परमेश्वर उन सबको Yes, Lord, pastors and teachers to bring your kingdom into earth, और Lord. पास्टर्स और टीचर्स को परमेश्वर ताकि वो तेरे राज्य को आगे बढ़ा पाए Yes, Lord, your kingdom would be extended, Lord. और परमेश्वर तेरा राज्य बढ़े Oh, परमेश्वर we believe for a miracle, हम Lord. विश्वास करते हैं एक We चमत्कार thank you, के लिए। Lord, for listening to every request, हम Lord. धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे हर एक विनंती को सुना Thank you, Lord, that that our Lord Jesus is coming soon. और हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू फिर से जल्दी आ रहा That है you're यीशु coming मसीह। for that beautiful wise brides, Lord, with oil burning in our hearts for you. क्योंकि परमेश्वर तू दुल्हन के लिए जल्दी आ रहा है Oh, we believe, Lord. हम विश्वास करते हैं Protect, Lord, परमेश्वर। Israel also, Lord, from all the परमेश्वर- country, Lord. परमेश्वर इस्राएल को बचा Yes, Lord, let him thank you for your mighty hand upon it, Lord. और परमेश्वर तेरे महान हाथ जो उसके ऊपर है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं Every person, Lord, every spirit would be drawn towards you, God. और हर एक व्यक्ति हर एक आत्मा तेरी ओर आए Oh, they would seek you, Lord. और तुझे खोजे Oh, we believe, God. हम None विश्वास would करते perish, हैं Lord. परमेश्वर Lord, draw all your people towards it, Lord. और परमेश्वर सबको तेरी ओर लेकर आ We believe, God, put all the enemy's plans into confusion, put them in their own trap. और परमेश्वर शत्रु की जितने भी परमेश्वर योजनाएं सबको हड़बड़ी में डाल दे Thank you for listening to us, Lord. धन्यवाद हमें सुनने के लिए Lord, thank you, Lord. Mark 11 verse 24 says, whatever you ask in prayer, believe that you've got it and it is yours. और मरकुस का 11 अध्याय 24 वचन कहता है कि जो भी तुमने प्रार्थना में मांगा है विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हें मिल जाएगा Thank you for the man of God who is going to come and share धन्यवाद your करते word. हैं परमेश्वर के दास के लिए जो यहाँ पर Thank you आएगा for the pastor, Lord. धन्यवाद करते हैं पासवान के In Jesus' name we pray. यीशु मसीह Amen. के नाम से हम प्रार्थना करते We हैं welcome Pastor Amrish, Lord, great man of God in our midst. और हम पासवान अमरीश का स्वागत करते हैं Lord, we pray, God, for every tithe and offering, Lord, would be put. See on the mobile. और The परमेश्वर mobile number is put. और हम हर एक ताइद और ऑफरिंग के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर और मोबाइल नंबर जो है वो स्क्रीन पे आ रहा है Yes, that comes बैंक on the अकाउंट screen. और मोबाइल नंबर जो है वो आपके स्क्रीन You are पे led by आएगा the Spirit. Put it by faith. आप नेट बैंकिंग के थ्रू डाल सकते हो What you sow, और you will reap with 100-fold. और एक नंबर भी आएगा वहां पर आप फोन पे भी कर सकते हो Put your prayer request. और अपनी प्रार्थना विनंती भी उस फोन नंबर पे जो Share आएगा your उस पर डाल सकते Share this message to many of your friends. हो और बहुत सारे अपने दोस्तों को ये संदेश को भेजिए And the Lord will bless you. What you sow, you will reap. प्रभु आपको आशीष देगा When you send a message to your friends, you put it by faith. और जब आप अपने मित्रों को ये संदेश को भेजते हो आप विश्वास के द्वारा डालते हो Remember, you are giving to the Lord, not to any man of God or not to people. और आप परमेश्वर को दे रहे हो ये बात याद रखें Yeah, the Lord sees your heart. Give परमेश्वर आपका हृदय cheerfully, देखता है pressed down, आनंद से shaken दे together, running over. आनंद से दो और आपको दबा दबा कर हिला हिला कर और उमड़ता And हुआ the Lord मिलेगा। will bless you with good health, with every need, every desires of your heart. और परमेश्वर आपको अच्छी स्वास्थ्य और आपकी जरूरत को भी पूरा करेगा Look to the Lord and give. और परमेश्वर को देखे और दे Oh, we thank you, Lord. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर Amen, amen. Amen. Praise the Lord, church. Praise the Lord कलीसिया Good morning to all. सभी को सुप्रभात I hope so. Everybody is eagerly waiting what God wants to speak to you. मैं आशा रखता हूँ कि सब रुके हैं परमेश्वर जो बोलना चाहता है वो सुनने के लिए Sunday is a very special day. और रविवार जो है वो एक काफी अच्छा दिन है It's not because it is Sunday, because God's presence comes in. और इसलिए नहीं क्योंकि ये रविवार है बट परंतु इसलिए क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति आती है Wherever you are, जहाँ पर भी आप हो the word will bring God's presence. और परमेश्वर का वचन उसकी उपस्थिति को लाएगा Because the word
word itself is Jesus Christ. क्योंकि वचन ही यीशु मसीह है। Today, what God wants to speak to us is what that God has already given us what we need. और आज जो परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है वो ये है कि परमेश्वर ने हमें पहले ही दे दिया है जो हमारी जरूरत है। Many times we do not know where it is hidden. और बहुत बार हमें पता नहीं रहता कि ये कहाँ पे छुपा है। Sometimes we keep it someplace and we forget. और कभी कभी हम उसे किसी की जगह पर रख देते हैं और भूल जाते हैं। Now let me tell you, this is what God says. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये परमेश्वर कह रहा है। Let's turn our Bible to Luke chapter 9, और आइए हम अपने पवित्र शास्त्र को खोलिए लूका का 9वां अध्याय verse 1 and 2. पहला और दूसरा वचन। And he called the 12 together and gave them power and authority over all the demons and to cure diseases. फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्टात्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। I believe everyone who is listening on the YouTube is being called by God. और मैं विश्वास करता हूँ हर एक व्यक्ति जो YouTube पे सुन रहा है उसे परमेश्वर ने बुलाया है। And those who are listening in the YouTube, if you are called by God, God has also given you power and authority. और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो YouTube पर सुन रहा है, अगर आपको परमेश्वर ने बुलाया है, मतलब आपको परमेश्वर ने अधिकार और सामर्थ्य भी दिया है। Yes, verse 2 says, दूसरा वचन कहता है, and verse 2 says, and he sent them forth to preach the kingdom of God and to heal the sick. और उन्हें परमेश्वर का राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। Yes, God called them, God gave them power and authority, God sent them. और परमेश्वर ने उन्हें बुलाया, परमेश्वर ने उन्हें सामर्थ और अधिकार दिया और उन्हें भेजा। And now they have gone and they are preaching God's kingdom. और अभी वो जा चुके हैं और वो जो है परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर They रहे are हैं healing the sick. और वो जो है बीमारों को चंगा कर रहे हैं। Bible says in verse 10, पवित्र शास्त्र के साथ 10वें वचन में, they returned back again. और वो फिर से वापस आए। Apostle returned back. और जितने भी प्रेरित थे वो फिर से वापस आए। They were sent by God, Jesus Christ. They went into the field and now they are returning back. और यीशु मसीह ने उन्हें भेजा, वो मैदान में गए और फिर अब वापस आए हैं। They had done their best to fulfill the work which Jesus gave them. और उन्होंने अपना उत्तम कोशिश की जो यीशु मसीह ने कार्य दिया उसको पूरा करने के Now लिए। let me tell you, you and I are also been called by God, given power and authority by God, and is sent by God to preach the kingdom. और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप और हमको जो भी है परमेश्वर ने बुलाया है, अधिकार और सामर्थ्य दिया है ताकि हम राज्य को प्रचार कर पाए। And now Bible says they have returned to Christ. और पवित्र शास्त्र कहता है कि अब वो यीशु मसीह के पास फिर से आ गए हैं। Do you know that you also are going to return to the Jesus Christ one day? क्या आपको पता है कि आप भी यीशु मसीह के पास फिर से जाओगे? And the first thing what Jesus word you expect for you. और एक चीज जो है क्या आप अपेक्षा रखते हो यीशु मसीह के द्वारा? Jesus said, I am waiting to tell you well done. और यीशु मसीह कहता है कि मैं रुका हूं तुम्हें कहने के लिए कि अच्छा काम किया। Well done. अच्छा काम The किया। first thing what Jesus will ask us, do you know my son? और पहली चीज जो यीशु मसीह हमें पूछेंगे कि क्या तुम मेरे बेटे को जानते हो? God will ask, do you know my son? परमेश्वर पूछेगा क्या तुम मेरे बेटे को जानते हो? And if you say yes, then he will take the account what you have done. और अगर तुम हाँ बोलोगे तो वो चीज लेगा जो तुमने वो हिसाब लेगा जो तुमने किया है। And after listening what you have done, he will say, well done. और तुम्हें सुनने के बाद वो कहेगा कि बहुत अच्छा काम किया। Now remember, the apostle returned back to Jesus Christ. और याद रखें कि प्रेरितों जो है वो वापस यीशु मसीह के पास आए। I met one man. और मैं एक इंसान से मिला। Oh, he says, I am very, very young. और वो कहता है कि मैं बहुत जवान हूँ। And his age is only 25 years. और मैं सिर्फ 25 साल का हूँ। But let me tell you, पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, whether you are young or old, everything depends upon your time of return. और आप जवान हो या बूढ़े हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब कुछ आप जब लौटने वाले हो उस समय पर निर्भर करता है। Nobody knows the date and the time when he is going to return back. और
किसी को ये नहीं पता कि यीशु मसीह कब आने वाले हैं, कौन से समय और कौन से दिन में। If you are age of 25 years and God has kept a timing for you to return at 30, you are very, very old. और अगर आप 25 साल के हो और परमेश्वर ने 30 साल की उम्र का समय रखा है कि आप वापस चले जाओगे स्वर्ग में, तो आप बहुत ही बूढ़े हो चुके हो। So who is young? तो कौन जवान है? Nobody is young in this world. कोई जवान नहीं है Because संसार nobody में। knows the date and the timing of their return. क्योंकि किसी को भी जो है अपने वापस जाने का समय और दिनांक नहीं पता। Today if you are at the age of 50 आज अगर आप 50 साल की उम्र के and हो God has kept a time for your return for 120 years, और परमेश्वर ने अगर आपका समय रखा है 120 साल पे ऊपर जाने का, that means you are too much young today. इसका मतलब है आप काफी जवान हो। I hope so you have understood you have to return to Jesus Christ. और मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए हो कि आपको यीशु मसीह के पास फिर से लौटना है। And verse 10 says the disciple returned. और 10वां वचन कहता है कि प्रेरित फिर से आए, The disciple returned. और चेले फिर से आए। And what was the scenario? और क्या परिस्थिति थी वहां पे? There was lot of people around there. और बहुत सारे लोग थे उनके आसपास, Lot of crowds came who are following Jesus Christ. और बहुत सारी भीड़ आई यीशु मसीह का पीछा करते Now, I want to करते। tell you, presence of Jesus is miracles. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह की उपस्थिति में चमत्कार हैं, And that is the reason many people gather. और इससे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। Some people want to see the miracle. और कुछ लोगों को चमत्कार को देखना था, Some people want to experience the कुछ miracle. लोगों को चमत्कार का अनुभव लेना था, Some people brought their relatives for the miracle. और कुछ लोग अपने रिश्तेदारों को लेके आए ताकि वो चमत्कार पा They पाए। came to know Jesus' presence is the presence of miracles. और उनको ये पता चल गया कि यीशु मसीह का जो उपस्थिति है वो चमत्कार की उपस्थिति है। That is the reason crowds were following. और इसलिए भीड़ जो है आ रही थी। Now Jesus and the disciple saw a big crowd. और अब यीशु मसीह और उनके चेलों ने एक बड़ी भीड़ को देखा। Jesus was healing them. यीशु मसीह उनको चंगाई दे रहे थे। Jesus was talking about God's kingdom. यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य के बारे में बात कर रहे थे। And then what happened? फिर क्या हुआ? Jesus said, यीशु मसीह ने कहा। now let's look at verse 12. और आइए हम 12 वचन की ओर The देखते day हैं। began to wear away. जब दिन ढलने लगा, The 12 came to Jesus Christ तो 12 ने आकर उससे कहा, and sent them, और उससे कहा, and said to Jesus Christ, और उन्होंने यीशु मसीह से कहा, send the multitude away. भीड़ को विदा कर कि चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर टिके, That they may go into the villages and country around about, lodge, get provision, for we are here in a desert place. और भोजन का उपाय करे क्योंकि हम यहाँ सुनसान जगह में हैं। Now let's look at verse 13. और 13 वचन की ओर देखेंगे। But he said unto them, give them to eat. And they said, we have no more than 5 loaves and 2 fish, except we should go and buy food for all these people. और उसने उनसे कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियां को छोड़ और कुछ नहीं, परंतु हाँ, यदि हम जानकर इन सब लोगों के लिए भोजन मोल ले तो हो सकता है। For they were about 5,000 men, and he said unto his disciple, make them sit in companies about 50 each. वो लोग तो 5,000 पुरुषों के लगभग थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, उन्हें 50-50 करके पांति बैठा दो। And they did so and made them all to sit down. उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बैठा दिया। And Jesus took 5 loaves and 2 fish in verse 16. और 16 वचन ने यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछलियां ली। Looking at heaven, he blessed them. और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया। And broke it. और तोड़ कर चेलों को देता गया। And gave to the disciple to set before the multitude. और तोड़ कर चेलों को देता गया। उनके चेलों ने उसे परोसा। And they ate and were all filled, and was taken up that which remained over to them of broken pieces. It was 12 basketful. तब सब खाकर तृप्त हुए और
चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई। You may be listening, oh, we know this story. और आप सुन रहे होगे और आपको ये कहानी पता होगी, But I want to tell you, you don't know what God wants to speak to you पर मैं today. आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप वो नहीं जानते परमेश्वर जो आपसे बात करना चाहता I'm not है। going to talk about Jesus feeding the multitudes. और मैं यीशु मसीह 5000 लोगों को खिला रहा है इसके बारे में नहीं बात करूंगा। Many मैं people might have focused that yes, pastor is going to speak on Jesus feeding the multitude. और बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि पासवान बात करेगा यीशु मसीह बहुत सारे लोगों को खिला रहा है उसके बारे में। Let me tell you, the writer Dr. Luke talks about there were 5,000 men. और जो लेखक है लूका जो है वो बात करता है कि 5000 पुरुष थे। And if there were 5,000 men, there are 5,000 women, 5,000 children, total 15,000. और 5000 पुरुष, 5000 स्त्री, 5000 बच्चे, तो 15,000 लोग। And this was the multitude. और इतनी बड़ी भीड़ थी। Now the disciple had returned back after completing what Jesus said to them to do. अब जितने भी चेले लोग हैं वो वापस आ गए थे जब यीशु मसीह ने उनको जो कहा था करने के लिए वो करके। Now I want to tell you the essence of the ministry. और मैं आपको सेवकाई की जो है महत्वता बताना चाहता हूँ। I want to tell you the ingredients of the ministry. और मैं सेवकाई की जो कुछ मूल चीज है वो बताना चाहता हूँ। Those who are listening to me, I want to tell you, everyone is in ministry. और कृपया करके जो मुझे सुन रहे हैं मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि सब व्यक्ति सेवकाई में है। You might be saying to yourself, "अरे, I am the housewife where I am doing the ministry." तो आप अपने आप को कह रहे होगे अरे मैं तो घर गृहस्थी करती हूँ मैं कैसे सेवकाई में हूँ। Let me tell you, feeding your children is a ministry. पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ अपने बच्चों को भोजन खिलाना भी एक सेवकाई है। You might be saying, "I am working in the office. Where is my ministry?" और आप ऐसा कह सकते हो कि मैं जो है ऑफिस में काम कर रहा हूँ मेरी सेवकाई किधर है। Let me tell you, when you are sitting in the office in the meeting and you carry Jesus and there you say what Jesus says, that is the ministry. और जब आप कार्यालय में बैठे हो और आप यीशु मसीह को लेकर चल रहे हो और जब जो यीशु मसीह आपको कह रहा है वो आप कहते हो तो वो सेवकाई है। You may say, "Where is my ministry?" आप कह सकते हो कि मेरी सेवकाई किधर है। I am an university student. मैं तो एक विद्यार्थी हूँ। Let me tell you, when you go in the university campus and when you see Jesus performing through you and you speak what Jesus says, that is the ministry. और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब आप यूनिवर्सिटी के कैंपस में जाते हो और जब आप देखते हो यीशु मसीह आपके द्वारा चीजें कर रहे हैं तो वो आपकी सेवकाई है। Many people misunderstand ministry means full-time teachers and pastors. और बहुत सारे लोग को लगता है कि सेवकाई का मतलब जो है फुल टाइम पासवान और फुल टाइम शिक्षक Or a preacher. या फुल टाइम प्रचारक। Please don't misunderstand. पर ये बहुत ही गलत है इसको ऐसे ना समझे। The important ingredients I am going to tell you. और जो मूल चीज है वो मैं आपको बताता हूँ। Let's focus on Luke 9 verse 1 again. और लूका का 9वां अध्याय और पहला वचन की ओर हम फिर से देखते हैं। Luke 9 verse 1. लूका का 9वां अध्याय और पहला वचन। Luke 9 verse 1. लूका का 9वां अध्याय और पहला वचन। And he called the 12. फिर उसने 12 को बुलाया। And he called the फिर 12. उसने 12 को बुलाया। And he called the 12. फिर उसने 12 को बुलाया। The first ingredient of the ministry is he calls you and I. और पहली मूल चीज ये पूरी सेवकाई की वो ये है कि वो आपको और हमको बुलाता है। Now remember, he doesn't call those who are equipped. और अब याद रखिए वो उन लोगों को नहीं बुलाता जो पहले से ही तैयार रहते हैं। He doesn't call those who are already talented. और वो ऐसे लोग को नहीं बुलाता जिनके पास पहले से ही जो काफी जो है टैलेंटेड रहते हैं। But he calls those who he calls, he equips them. पर वो ऐसे लोगों को बुलाता है जिनको वो तैयार करता है। Yes, he equips those who have been called by him. और जिन लोग को उन्हें बुलाया है उसको वो तैयार करता है। God called Moses. परमेश्वर ने मूसा को बुलाया। Moses says, "I am not ready. मूसा ने कहा मैं तैयार नहीं हूँ। I cannot go. मैं नहीं जा सकता। I cannot मैं go." नहीं जा सकता। Moses was not ready. मूसा तैयार नहीं But था। God called
calls was there on Moses. परंतु परमेश्वर की बुलावट मूसा के जीवन पर थी। God equipped Moses. परमेश्वर ने मूसा को तैयार किया। Now remember, there are many people who are not called, but they so call themselves as called. और बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बुलाया नहीं गया है, परंतु वो अपने आप को ऐसे दिखाते हैं कि हमें बुलाया गया है। And if you are not called by God, और अगर आपको परमेश्वर ने नहीं बुलाया है, you cannot remain there. आप वहां पर नहीं रह सकते। You might be talented. और आपके पास जो है चीजें होगी जो आप कर You might सकते be हो। talented. आपके पास टैलेंट होगा, गुण होगा, But let me tell you, your talent is of no use. पर आपका गुण किसी काम का नहीं है। Because you need Jesus. क्योंकि आपको यीशु मसीह चाहिए। You need Jesus. आपको यीशु मसीह की जरूरत है। Now, these people were called by Jesus Christ. और अब ये लोगों को यीशु मसीह ने बुलाया। The first ingredient of the ministry, पहला- Jesus calls you. पहला मूल जो है सेवकाई का वो है कि यीशु मसीह आपको बुलाता I है। hope so. Everybody who is listening on the YouTube understands their call. और मैं आशा करता हूँ कि हर एक व्यक्ति जो YouTube पर सुन रहा है वो अपने बुलावट को समझता They है। understand who has called them. उनको समझना चाहिए कि किसने उन्हें बुलाया है। Jesus called the 12. यीशु मसीह ने 12 को बुलाया। Jesus called the 12. यीशु मसीह ने 12 को The बुलाया। second ingredient of the ministry और दूसरी जो मूल बात है सेवकाई की वो है is that he equipped them with power and authority. कि वो ये है कि उस यीशु मसीह ने उनको सामर्थ और अधिकार दिया। He equipped them with power and authority. और उनको सामर्थ और अधिकार दिया। And the third ingredient of the ministry is और- then he sent them. तीसरी मूल बात ये है कि उसने फिर भेजा उन्हें। Now, if you are equipped, that means God has already given you what you need. और अगर आपको तैयार किया गया है, इसका ये मतलब है कि परमेश्वर ने आपको जो भी जरूरत है वो आपको पहले ही दे दिया है। So the first ingredient, God calls you. पहली मूल बात परमेश्वर बुलाता है। Second ingredient, God gives you power and authority. दूसरी मूल बात परमेश्वर आपको सामर्थ और अधिकार देता है। And the third, then he sends. और तीसरी वो भेजता है। Don't go till Jesus sends you. तब तक ना जाए जब तक यीशु मसीह ना भेजे आपको। This is the three ingredients of the recipe of the ये ministry. 3 मूल चीजें हैं इस रेसिपी की। And then they went away. और फिर वो चले गए। And then they went away. फिर वो चले गए। Many people without calling, they start something on their own. और बहुत सारे लोग बिना बुलावट के अपना खुद का कुछ शुरू कर देते They हैं। try to do everything on their talent and their own efforts. और वो सब कुछ अपने खुद से करते, अपने गुण के द्वारा करते हैं। Yes, now you should understand there is a call and there is a calling and there is a timing. और अभी आपको ये समझना है कि एक बुलावट है और एक समय है। Yes, these three ingredients, I hope so you remember. और मैं आशा करता हूँ कि ये 3 मूल चीजें आपको याद रहेगी। And now we are going to come again in verse 10. They return back. और 10वें वचन में हम फिर से आएंगे कि वो वापस आए। And Bible says they saw the multitude. और पवित्र शास्त्र कहता है कि उन्होंने हजारों को देखा। And when there is a multitude, there is a need. और जब एक बड़ी भीड़ है तो एक जरूरत है। When there is a multitude, there is a need. जब एक बड़ी भीड़ है तब एक जरूरत है। And they saw, they came under pressure. और उन्होंने देखा और वो काफी तनाव में आ गए। Let us turn our Bible to Mark chapter 6, where the same thing is written down by Mark. और आइए हम अपने पवित्र शास्त्र को खोलें, मरकुस का 6वां अध्याय, जो वही चीज जो मार्क ने लिखी है, मरकुस ने लिखी है। If you have the Bible, you can open. और अगर आपके पास पवित्र शास्त्र है तो आप खोल सकते हो। In Mark chapter 6, मरकुस का 6वें अध्याय में, in Mark chapter 6, मरकुस का 6वें अध्याय में verse 30 talks about 30वां वचन जो है वो बात करता है। the apostle returned to Jesus. The apostle returned to Jesus. प्रेरितों ने यीशु के पास इकट्ठे हुए। Verse 30, the apostle returned to Jesus प्रेरितों यीशु के पास इकट्ठे हुए and told him what that they had done and what they taught. और
जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उसको बताया। Now let me tell you, they are already tired. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो पहले ही थक गए हैं। They were very so much in zeal that they did what Jesus told them to do. और वो इतने जोश में थे कि उन्होंने किया जो यीशु मसीह ने कहा उनसे करने के लिए। They never waited anywhere. वो कभी किधर भी रुके नहीं। They were doing what Jesus said. और वो वही कर रहे थे जो यीशु मसीह ने कहा करने And के now what लिए। happened? They might have got tired. और अब क्या हो गया? वो थक गए होंगे। They might have got tired. वो थक गए होंगे। When you are tired in the ministry, और जब आप थक गए हो सेवकाई में, then you should know what Jesus did. तब आपको ये पता होना चाहिए कि यीशु मसीह ने क्या किया। In Mark chapter 6 verse 37 says, और मरकुस का 6वां अध्याय और 37 वचन में लिखा and है, he said to them, come away by yourself to a desolate place and rest a while. उसने उत्तर दिया, तुम ही उन्हें खाने को दो। No, verse 31, Mark chapter 6 verse 31. 37 हाँ 31वां अध्याय में उसने उनसे कहा, तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे। Listen what Jesus said. और सुने यीशु मसीह ने क्या If you कहा। are tired in the ministry, और जब आप थक गए हो सेवकाई and if you में come to Jesus, और आप यीशु मसीह के पास आते हो, Jesus never say go away. और यीशु मसीह कभी नहीं कहता कि चले जाओ। Jesus says come with me. यीशु मसीह कहता है कि मेरे साथ चलो, I will give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। I will give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। I will give you rest. मैं तुम्हें विश्राम There's a दूंगा। time to rest with Jesus और Christ. एक समय है विश्राम करने का, वो यीशु मसीह के साथ है। Many people say, I'm tired of the ministry, I want holiday. और बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं थक गया हूँ सेवकाई से, मुझे छुट्टी चाहिए। Let me tell you, beloved, you can have an holiday, but you cannot have a day without Jesus और Christ. मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रियो कि आप छुट्टी ले सकते हो, परंतु आप ऐसा दिन नहीं ले सकते जो यीशु मसीह के बिना हो। With Jesus, every day becomes holy day. और यीशु मसीह के साथ हर एक दिन पवित्र दिन हो जाता है। And you need Jesus even though you are on holiday. और आपको यीशु मसीह की जरूरत है तब भी जब भी आप छुट्टी पर हो। Yeah, we will come back again in Luke chapter 10, और आइए 9 फिर से आते हैं लूका का 9वां अध्याय पर। and verse 11. 11 वचन की ओर And देखते verse हैं। 11. 11 वचन की ओर देखते They हैं। saw the multitude. और यह जानकर भीड़ उसके पीछे हो ली। They saw the उन्होंने multitude. भीड़ को देखा And they were knowing their needs. और उनको पता थी भीड़ की क्या जरूरत है। And let me tell you, beloved, मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रियो, verse 12, 12 वचन, verse 12, 12 वचन, verse 12, 12 वचन। and they all were watching. और वो सब देख रहे थे They came to know the need. और उनको जरूरत पता चली। They said to Jesus Christ, उन्होंने यीशु मसीह से कहा, send them away, उनको भेज दो फिर से, send them away. उनको फिर से भेज दो। Let me tell you, in ministry, many times these things happen. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सेवकाई में ऐसे बहुत बार चीजें होती In है multitude, you will get so many people like this. और बहुत सारे और भीड़ में आप बहुत सारे लोग को मिलोगे। I want to tell you, as a pastor, I have seen many people in the multitude. They have many needs, and sometimes we get frustrated. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ पासवान होने के नाते मैं बहुत लोग से मिला और लोगों की बहुत जरूरतें होती है। And let me tell you, beloved, and sometime this is what the disciples said, Jesus, please send them away. और कभी कभी चेलों ने कहा कि यीशु मसीह कृपया करके उनको भेज दे यहाँ से, Send them away, Jesus. विदा कर दो यहाँ से, Send them उनको away. विदा कर दो यहाँ You know, से। many times we don't only say, but we start praying also. और हम बहुत बार सिर्फ कहते नहीं है, प्रार्थना भी करने लगते हैं। We don't want those guys with us. और हम नहीं चाहते वो लोग हमारे साथ, Because they are having need, they are troubling us, they always come for something. और क्योंकि उनकी कोई जरूरत होती है वो हमेशा हमारे पास आते हैं और हमेशा परेशान करते And रहते sometimes हैं। we start praying and we saying, Lord, please send them away. और हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर उन्हें भेज दे। The disciple also said, Lord, send them away. और चेलों ने भी कहा कि परमेश्वर भेज दे उन्हें। In ministry, when you come to see the need, और सेवकाई में जब आप जरूरत को देखते हो, this is what the Lord wants to say to you. परमेश्वर ये आपसे कहना चाहता I have है, already equipped you. और मैंने तुम्हें पहले ही तैयार किया I have already है, given you the power and the authority. और मैंने तुम्हें पहले ही सामर्थ्य और अधिकार दिया है। Whatever need comes there, Jesus is with you. और जो भी जरूरत वहां पे आती है यीशु मसीह तुम्हारे साथ है। Instead of
bringing them to Jesus, they started telling to Jesus, send them away. और चेले लोगों ने उनको यीशु मसीह के पास लाने के बजाय यीशु मसीह से कहा कि उनको विदा करके भेज दो यहाँ Forget से। about that. When Jesus said, no, I cannot send them away, you give something them to eat, they said, send us away. और जब और इसके बारे में भूल जाओ, जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं उन्हें भेज नहीं सकता, तुम उन्हें कुछ खाने को दो, तो चेलों ने कहा कि हमें भेज दो। We will go to the neighboring villages. तभी हम जो है वो आजू बाजू के जितने भी जो है गांव है वहां पर जाएंगे We will try to find provisions. और हम कोशिश करेंगे कि हम जो है वो भोजन को ढूंढ पाए And then we will come back. और फिर से आएंगे हम। Listen, सुने, many people who are like this, बहुत सारे लोग ऐसे हैं when they find the need, और जब वो उस जरूरत को ढूंढते हैं if the need is not going away, और अगर जरूरत जा नहीं रहा है then they say to God, God, send us away from this need. तो वो कहते हैं कि परमेश्वर इस जरूरत से हमें दूर कर। Yes, you may be a housewife और आप एक घर गृहस्थी करने वाली स्त्री होगी and your child is a growing और child. आपका बच्चा जो है वो एक बढ़ता हुआ बच्चा You know है। what is your ministry? आपको पता है आपकी सेवा का क्या To है? give him the best food and the word of God. ताकि कि आप जो है उनको सबसे अच्छा भोजन दो और परमेश्वर का वचन दो, Such that when they grow old, they will not forget what you have taught to them. ताकि जब वो बड़े होंगे तो वो भूलेंगे नहीं जो आपने सिखाया उन्हें। Best quality of food is your ministry to prepare for your children. और सबसे सबसे अच्छा भोजन आपके बच्चों के लिए वो ये है कि आपकी सेवकाई जो वो यही होगी कि आप अपने बच्चों को तैयार करेंगे। Yes, Jesus said, nothing doing, you will also not go, the need will also not go. और यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं करना है, आप भी नहीं जाओगे, जरूरत भी नहीं जाएगी। You will also not go, the need will also not आप भी नहीं go. जाओगे, जरूरत भी नहीं जाएगी। And let's look again, we are turning back to Mark chapter 6. This is what Jesus is saying. और फिर से हम देखेंगे मरकुस का 6वां अध्याय, फिर से हम देखेंगे यीशु मसीह क्या कह रहा है। Yes, he said to them, और उन्होंने उनसे कहा, he said to them, how many loaves do you have? और 48वां वचन, उसने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। How many loaves do you have? कितनी रोटियां हैं। Yes, when there is a need, something is there with you. और जब आपके पास एक जरूरत है तब कुछ होता है आपके पास, And you need to find out. वो आपको ढूंढना है। Jesus says, go and look. यीशु मसीह कहता है कि जाओ और देखो। Many people doesn't want to go and look. बहुत सारे लोग को जाकर देखना नहीं है, They are only talking about the need to Jesus. वो सिर्फ जरूरत को यीशु मसीह के पास बात कर रहे हैं। Let me tell you, after you are called, God has already equipped you with power and authority. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको बुलाने के बाद परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य और अधिकार दे दिया है। And there is something stored within you. और आपके अंदर कुछ है। And Jesus asked, how many loaves do you have? और यीशु मसीह ने पूछा कि कितने रोटियां आपके पास, How many loaves do you have? कितने रोटियां आपके Now पास। let me tell you, disciples were very blank. Nothing was there in their hand. Jesus said, go and look. और चेले जो है वो काफी जो है उनको कुछ समझ नहीं आया, तो वो यीशु मसीह ने कहा कि जाओ और ढूंढो। Go and look. जाओ और ढूंढो। Please underline, go and look. और जाओ और ढूंढो, इसको रेखांकित कर दो। What you carry, you should know. और आप क्या लेके चल रहे हो आपको पता होना चाहिए। You should know what is the hidden treasure in you. और आपको पता होना चाहिए आपके अंदर क्या गुप्त खजाना है। You are being equipped by the power and the authority. आपको जो है तैयार किया गया है सामर्थ्य और अधिकार के द्वारा। Many people are blank when the need comes and arises and they don't know what to do. They're just behind Jesus. Help me in the need. और बहुत सारे लोग जरूरत के समय में उनको पता ही नहीं होता क्या करना है, वो सिर्फ यीशु मसीह के पीछे से जाते हैं, बोलते हैं कि मुझे मदद करो, मुझे मदद करो। You know what Jesus is saying? आपको पता है यीशु मसीह क्या कह रहा है? How many loaves you have? कितने रोटियां आपके पास? What do you have? Please check. और जो भी आपके पास देखो, Please check what do you have. और देखो क्या आपके पास। And he is very confident. He is saying, go and look. और वो काफी
जो है शाश्वती में कहता है कि जाओ और देखो। Yes, you need to look what you have. और आपको देखना है जो आपके पास है वो। Some people are worried about their need. और कुछ लोग जो है चिंतित रहते हैं अपने जरूरतों के बारे में। They say, God, I don't have anything. और वो कहते हैं कि परमेश्वर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। Jesus is confident. यीशु मसीह जीसस इज Confident. और यीशु मसीह शाश्वती में He है। knows when I have called him, I have equipped him also. और उसको पता है कि और उसको पता है कि उसने कब आपको बुलाया और उसने आपको तैयार भी किया है। Yes, उसने आपको बुलाया, उसने आपको तैयार किया, उसके बाद भी भेजा है। चाहे कौन सी भी जरूरत सामने क्यों ना आए, कभी नहीं बोलना प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है। कुछ तो है, प्रभु को पता है कुछ तो है, और इसलिए यीशु मसीह बोलता है जाकर देखो क्या है तुम्हारे पास, जाकर देखो क्या है तुम्हारे पास। Something is there, go and look. Something is there, go and look. How many loaves do you have? कुछ है जाकर देखो, कुछ है जाकर देखो, कितनी रोटी है आपके पास। Finally they said, फिर उन्होंने कहा, finally they said, अंत में उन्होंने कहा, we have 5 loaves and 2 fish. 5 रोटी और 2 मछली है। 5 loaves and 2 fish. 5 रोटी और 2 मछली Small thing what they carry. है। और जो छोटी चीज जो वो लेके चल रहे Now थे। let me tell you, beloved, whatever you have is sufficient for God to meet your need. और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो भी आपके पास है वो परमेश्वर के लिए काफी है कि वो आपकी जरूरतों को पूरा कर पाए। 5 loaves and 2 fish. और 5 रोटी 2 मछली। The disciple came to Jesus Christ with that. तो ये जो है चेले जो है वो आए यीशु मसीह के पास वो लेकर। And Jesus saw 5 loaves and 2 fish. और यीशु मसीह ने जो है 5 रोटी 2 मछली देखी। Jesus never drive them away. और यीशु मसीह ने उन्हें कभी वापस नहीं भेज दिया। ये नहीं बोला अरे 15,000 लोग और 5 रोटी 2 मछली लेकर आओ, जाओ और कुछ क्षमा कर लेके आओ। He never said like that. और उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। क्या है आपके पास? What do you have? क्या है आपके पास? What do you have? क्या है आपके पास? What do you have? क्या है आपके Now पास? again I will repeat what God is saying. I have already given you what you need. और मैं फिर से आपको कहना चाहता हूँ कि जो परमेश्वर कह रहा है कि आपको जो जरूरत है मैं आपको पहले ही दे के रखा है मैंने। What do you have? क्या है आपके पास? What do you have? क्या है आप? They said we have 5 loaves and 2 fish. और उन्होंने कहा कि हमारे पास 5 रोटी 2 मछली है। We found out what we have. This is what we have. और हमने ढूंढ लिया हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास। I liked what Jesus said. और मुझे पसंद आया जो यीशु मसीह ने कहा वो। People were all gathered. लोग इकट्ठे हो गए Many थे। people were giving. लोग दे रहे थे। There was a widow also who gave something. और एक विधवा भी थी जिसने कुछ दिया Somebody था। asked Jesus Christ, और किसी ने यीशु मसीह को पूछा which offering did you like? कि कौन सी कौन सा भेंट दान? आपको ज्यादा अच्छी लगी। He said the offering of this widow who gave 2 penny. और उसने कहा कि ये विधवा जिसने 2 पैसे दिए मुझे ये पसंद आया। Now remember, God is not interested in quantity. और परमेश्वर कितना बड़ा आप दे रहे हो उसमें दिलचस्पी नहीं रखता है। God doesn't work with what you have. परमेश्वर उस हिसाब से कार्य नहीं करता है जो आपके पास है उसके द्वारा। God is an omnipotent one. परमेश्वर सर्वशक्तिशाली परमेश्वर He है। doesn't need your 5 loaves and 2 fish. वो आपके 5 रोटी और 2 मछली की उसको जरूरत नहीं है। But He wants to see whether you are able to give whatever you have in God's hand. और वो जो है वो आपको वो देना चाहता है जो भी आपके पास है। वो ये देखना चाहता है जो कि आप परमेश्वर के हाथों में दोगे कि नहीं। Yes. Do you trust Him? क्या आप उस पर भरोसा रखते हो? Do you trust Him? क्या आप उस पर भरोसा रखते हो? Let me tell you, many people are not ready to deliver what they have in the time of the need. और बहुत सारे लोग जो है वो देना ही नहीं चाहते जो उनके पास है जरूरत के समय में। Don't run away from the need. और जरूरत से भागे नहीं। Don't pray, God send the need away. और ये प्रार्थना ना करे कि परमेश्वर जरूरत को दूर भेज। Don't pray that God send me away. और ये प्रार्थना ना करे कि परमेश्वर मुझे दूर भेज। Have you seen people jumping from one church to the other? क्या आपने लोगों को देखा एक कलीसिया से दूसरे कलीसिया जाते रहते हैं? Because they come to know there is a need and they run away because they cannot cope with the need. क्योंकि उनको पता चलता है एक जरूरत है, वो उस जरूरत को पूरा नहीं कर सकते, वो भाग जाते हैं। Need doesn't run away.
और जरूरत भागती नहीं है। Jesus said, "Oh, I cannot do that. I need this multitude." और यीशु मसीह ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इस भीड़ को चाहता हूँ। Let me tell you, सुनो, 5 loaves and 2 fish. 5 रोटी 2 मछली, 5 loaves and 2 fish. 5 रोटी 2 मछली। Jesus said, "Let the multitude sit in 50 of group of each." यीशु मसीह ने कहा कि 50-50 में लोगों को का गढ़ बनाओ और उनको Yes, बिठाओ। properly division taking place. और लोगों को बराबर जो है अलग अलग एक गढ़ बनाकर बिठाओ। Because when I'm going to give to every person. क्योंकि जब मैं दूंगा तो मैं हर एक व्यक्ति को दूंगा। I don't want any confusion or chaos. और मैं नहीं चाहता कि कुछ भी जो है कंफ्यूजन हो या ऐसी चीज हो जिससे किसी को कुछ मिले नहीं। हर एक 50 का झुंड, 50 का झुंड अलग, 50 का झुंड अलग, ऐसे ऐसे 50 का झुंड बनाओ। 15,000 लोगों का 50 का झुंड। आप बताइए कितना झुंड होगा, कितने ग्रुप्स होंगे? डू यू नो हाउ मेनी ग्रुप्स माइट बी सिटिंग देयर? 3,000। ओके, 3,000 और 3,000 गढ़ जो है वो बैठे थे वहां पे। 3,000 3,000 गढ़ जो है वो बैठे थे ना ना वहां ना पे। ना 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 300 300 300 300 300 into 50। Yes, 300. My son is very good in maths. Please forgive him. Listen, 300 groups are there. और 300 ग्रुप थे वहां पे। And he wants everyone to receive. और वो चाहता था कि हर एक जो है उसको पाले। Sometime कभी कभी you need to follow what Jesus says. आपको जो है आपको यीशु मसीह जो कह रहा है उसके पीछे चलना है। You should know how to make the groups. और आपको जो है आपको पता लगना चाहिए कि आपको कैसे गढ़ बनाने हैं। You are not able to manage them together. और आप उन सबको एक साथ को आप जो है I was asking Jesus, why you made them to sit in group of 50? और आप सबको एक साथ मैनेज नहीं कर पाओगे। आपको मैंने यीशु मसीह को पूछा था कि आपने 50 की गट में ही क्यों Let me tell you, the group which can be managed easily by one fellow. और हर एक गट जो है वो एक व्यक्ति से संभाला जा सकता है। 50 is sufficient. 50 तो काफी है। Oh, person can manage 4 groups. एक व्यक्ति 4 गट संभाल सकता है। Let me tell you, beloved, सुने प्रियो, everyone together is a confusion. और हर एक व्यक्ति जब एक साथ होगा, तब एक साथ जब होगे तब काफी You will not come to know who receives, who has not received. तो आपको समझेगा नहीं किसको मिला है किसको नहीं मिला है। Jesus made the arrangement. यीशु मसीह ने जो है चीजें सही की। He took the 5 loaves and 2 fish. उसने 5 रोटी और 2 मछली ली। He took the 5 loaves and 2 fish. 5 रोटी और 2 मछली ली। He looked at heaven and gave thanks to his God. ईश्वर की ओर देखा और परमेश्वर को धन्यवाद दिया। And he started distributing. और वो बांटने लग गया। He started distributing. वो बांटने लग गया। He broke the bread. उसने रोटी को तोड़ा। And he started giving to the disciple, go and give. और वो चेलों को देने लग गया बोल के कि जाओ देते जाओ देते जाओ। And they were distributing. और वो देते जा रहे थे। They were वो distributing. देते जा रहे थे। They were वो distributing. देते जा रहे थे। Let me tell you, everybody ate. और मैं आपको कहता हूँ कि सबने खाया। Everybody was satisfied. सभी तृप्त हो गए। Everybody's hunger was filled. सबकी भूख मिट गई। I want to tell you the best food which we receive. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ सबसे उत्तम खाना जो हम जो है पाते हैं। Right from my childhood, और बचपन से we wait for Sunday. और हम रविवार की क्या बोलते हैं आशा देखते थे। Sunday afternoon is the best food. और रविवार की जो दोपहर का दोपहर है उसको सबसे अच्छा खाना मिलता है। Yes, we wait when Sunday afternoon will come and when we can have good food. और हम रुकते थे कि कब रविवार का दोपहर आएगा और हम अच्छा खाना खा पाएंगे। My mother used to start cooking right from Saturday night. और मेरी माता जो है वो शनिवार की रात को ही खाना बनाना शुरू कर देती And थी। we can see all the fragrance coming at home. और हम देख सकते थे जितने भी चीजें खुशबुएं घर पे जा Saturday रही थी night only our appetite starts for Sunday afternoon. और शनिवार रात को ही हमारा जो भूख है वो आने लगता था। Sunday afternoon is the right time for the appetite. और रविवार दोपहर को सही समय था हमारे भूख के लिए। And that is the reason you become more hungry. और
आप ज्यादा भूखे होते हो। And this is the time when God wants to feed you. और ये समय है जब परमेश्वर आपको जो है खिलाना चाहता So है। you wait for every Sunday, and what God wants to feed you with, you become very eager. और आप हर रविवार के लिए रुकते हो, परमेश्वर आपको जो खिलाना चाहता है आप उसके लिए काफी जो है तैयार रहते हो। Let me tell you, beloved, मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रियो, Bible says they were satisfied. पवित्र शास्त्र कहता है कि वो तृप्त हो गए थे। How to come to know they are satisfied? और कैसे आपको पता चलेगा कि वो Do you तृप्त know हो what गए? is satisfaction? आपको पता है तृप्ति क्या है? Do you know what is satisfaction? आपको पता है संतुष्टता क्या है? You know, संतुष्टि some क्या है? people eat so much that they start burping out. और कुछ लोग इतना खाते हैं कि वो डकार मारने लगते And when हैं। they start burping out, they cannot push anything more inside. और जब वो डकार मारते हैं तो वो कुछ और ज्यादा नहीं खा सकते। Let me tell you, beloved, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रियो, you know when is the best food? और आपको पता है सबसे उत्तम खाना And क्या when है? you get satisfied, जब आप जो है तृप्त होना। तृप्त हो जाते हो। क्या पता है आप तृप्त होते हैं जब आपके पास बचता है। अब आपके पास जगह नहीं है अंदर डालने के लिए, बच गया, दैट इज द टाइम यू आर सेटिस्फाइड। और जब आपके पास खाना बच गया है तभी आप जो है तृप्त हो गए, और वही समय है जब आप संतुष्टि में हो। हम लोग होटल गए थे, खाना बहुत हो गया, अब अंदर नहीं जा रहा। हमने क्या बोला, भाई पैक करके दे दो, घर ले जाएंगे। रिमेंबर दैट। और याद रखे इस चीज को। व्हाट वी डिड, हमने क्या किया? पैक इट, पैक कर दिया। नथिंग गोज इनसाइड नाउ, वी आर सेटिस्फाइड। और अंदर कुछ नहीं जाता, हम तृप्त हो गए हैं। फूड इज वेरी वेरी टेस्टी, और खाना भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था। वी नीड टू पैक इट, हमें पैक करना ही है। we need to pack it, हमें पैक करना ही है। and we tell the hotel guy, please pack the food. और हम होटल वाले को कहते हैं कि पैक कर दो। You know what Jesus did? आपको पता है यीशु मसीह He ने said, क्या pack कहा? everything which is balanced. उन्होंने कहा कि सब कुछ पैक कर दो जो भी बच गया है। 12 basket full was balanced. 12 टोकरियां बच गई। Now I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता please हूं, listen, कृपया करके सुने। please listen. कृपया करके सुने। To the multitude, 5 loaves and 2 fish was a great gift from God. और उस भीड़ के लिए 5 रोटी 2 मछली परमेश्वर की एक बहुत बड़ी भेंट थी। What was a gift to the disciples? लेकिन चेलों के लिए क्या भेंट थी? The gift to the disciples were 12 basket full. और चेलों के लिए वो 12 टोकरियां भेंट थी। 12 basket full was a gift to the disciple. 12 टोकरियां वो चेलों के लिए भेंट थी। You know why? आपको पता है क्यों? It was that they were satisfied. क्योंकि वो तृप्त हो गए थे। When you are hungry, और जब आप भूखे हो, now they have already come very tired. अब वो आ गए हैं काफी जो है थके हुए। Bible clearly told they were tired and they came to Jesus to report whatever they have done. और पवित्र शास्त्र कहता है कि वो थक गए थे और वो यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने कहा जो भी उन्होंने किया Jesus था। fed them not only with emotionally, but he also fed them physically. और यीशु मसीह ने सिर्फ उन्हें मानसिक रीति से नहीं भरा परंतु शारीरिक रीति से भर दिया। Yes, and when they saw that 12 baskets were full, 1 basket for each disciple. और जब उन्होंने देखा कि 12 टोकरियां भर गई, एक टोकरी हर एक जो है चेलों के। I want to tell you, beloved, those who are listening, मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रिय जो सुन रहा है, you have a call of God upon your life. आपके पास परमेश्वर की बुलावट है आपकी जीवन You के are लिए। already been equipped by God because you are called by God. और परमेश्वर ने आपको पहले ही तैयार कर दिया क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुलाया है। Yes, and you are being sent by God. और परमेश्वर आपको भेज रहा है। In this journey, you will find many needs. और इस सफर में आप बहुत सारी जरूरतों को आप पाओगे। Don't get panicked by looking at the needs of the multitude. और जरूरतों को और भीड़ की जरूरत को देखकर आप हड़बड़ा न जाए। Your need might be for your husband might be your need. और आपकी जो आपका पति आपका एक जरूरत होगा Because he might be expecting many things from you. कि वो आपसे काफी कुछ अपेक्षा रख रहा है। Sometime your wife might be your need. कभी आपकी पत्नी आपकी जरूरत होगी Because she is expecting many things from कि you. वो आपसे बहुत कुछ अपेक्षा रख रही है। Sometime the food which you give to your son, his appetite becomes a need, and you may say, I am tired, how much to feed him? और कभी कभी आपका जो बेटा है वो आपकी जरूरत बन जाएगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा खाता है और उसकी भूख मिट
मिटती नहीं है, and you get tired cooking for him. और आप थक जाते हो उसके लिए खाना बनाते Let बनाते। me tell you, in the ministry which God gave you, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये सेवकाई में जो परमेश्वर ने दिया आपको, something is hidden in you कुछ आपके अंदर छिपा है which you should go and look at. जो आपको जाकर देखना है, जिस If पर you get the need in your life, और अगर आप उस जरूरत को अगर आप उस जरूरत को देखते हो जाके, if you face the need in your life, और अगर आप उस जरूरत को जो है का सामना करते हो, if you find a great multitude before you और एक बड़ी भीड़ को आप सामना करते हो तो, and you don't know what to और do, आपको नहीं पता क्या करना है, remember what Jesus is saying to you तो today. याद रखिए यीशु मसीह क्या कह रहा है आपको, How many loaves do you have? कितने रोटी है आपके पास, How many loaves do you कितने have? रोटी है आपके पास, Go and look. जाकर देखो, Go and look. जाकर देखो। Sometimes my son comes and says to me like this, और कभी कभी मेरा बेटा आकर मुझे कहता है, Papa, I am got bored. पप्पा मैं बोर हो गया हूँ, Papa, I got bored. पप्पा मैं बोर हो गया हूँ। Let me tell you, there are many disciples like this in the और ministry. बहुत सारे चेले लोग हैं ऐसे सेवकाई में, They say, I am bored with the वो ministry. कहते हैं कि मैं बोर हो गया हूँ How सेवकाई much to से। feed people? कितना लोगों को खिलाने का How और much to meet their need? कितना लोगों की जरूरत पूरी This is करने की never और ending. ये कभी खत्म ही नहीं होता This is है, never कभी ending. खत्म नहीं होता ये। Every time some of the other person comes. हर एक बार कोई ना कोई आते रहता This is है, what God is saying. और ये परमेश्वर कह रहा है आपसे, Blessed is the one who gives then who receives. और धन्य है वो जो देता है पाने से ज्यादा। Are you ready to give whatever you have with Jesus in hand? क्या आप तैयार हो जो भी आपके पास है वो यीशु मसीह के हाथों में देने के लिए? Jesus says to you today, यीशु मसीह आपको कहता है, I've आज already given you what you need. मैंने आपको पहले ही दे दिया है जो आपको जरूरत है, Just get ready. तो सिर्फ तैयार हो जाओ, Just get सिर्फ ready. तैयार हो जाओ। Go look into your cupboard. और अपने कबड़ में ना देखे, Go and look into your cupboard. और जाकर अपने अलमारी में देखे, Go and pull the drawers. और जाके ड्रॉर खोले, Somewhere you have kept that what I have given to और you. कहीं तो आपने वो चीज रखी है जो मैंने आपको दिया I have है, already equipped you with power and और authority. मैंने पहले ही सामर्थ और अधिकार दिया I है, have sent you with power and और authority. मैंने आपको सामर्थ और अधिकार से भेजा है, Your sending is for a mission sake. और मैंने आपको एक मकसद के लिए भेजा है। Are you in a company working? क्या आप एक कंपनी में काम कर रहे हो? God has a mission for you in that परमेश्वर के company. पास आपके लिए एक मकसद है उस कंपनी में। He sent you in that company to preach the kingdom. परमेश्वर ने आपको उस कंपनी में भेजा ताकि आप उसके राज्य का प्रचार कर Are you a पाओ। housewife at your home? क्या आप एक घर गृहस्थी करने वाली स्त्री हो? God has sent you there to teach your children. परमेश्वर ने आपको वहां पर रखा है ताकि आप अपने बच्चों को सिखा पाओ। Are you a school teacher? क्या आप एक विद्यालय की शिक्षक हो? God has made you teacher because God wants you to teach His kingdom. परमेश्वर ने आपको एक शिक्षक बनाया क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप उसके राज्य की शिक्षा दो। Wherever you are placed by God. जहाँ पर भी आप हो परमेश्वर ने आपको रखा है वहां If you are पर। called by God, God has equipped you अगर also. परमेश्वर ने आपको बुलाया तो परमेश्वर ने आपको तैयार भी Again, किया I will है। repeat the prophetic statement. और फिर से एक बार मैं इस चीज को कहूंगा, God doesn't call those who are equipped. और परमेश्वर उन लोग को नहीं बुलाता जो पहले से तैयार है। God equips those He calls. परमेश्वर पहले लोगों को बुलाता है और फिर उनको तैयार He करता said to है। Moses, what is in your hand? और उसने मूसा को कहा क्या है तेरे हाथ When में? there was a need, he said, Moses, what is in your hand? और मूसा को उसने कहा क्या है तेरे हाथ में? Moses was not knowing this stick is very, very मूसा को powerful. नहीं पता था कि ये लाठी काफी सामर्थ्यशाली He है। had a stick in his hand. उसके पास एक लाठी थी हाथ Something is में। there in your hand. कुछ आपके हाथ में है, Something is there in your कुछ hand. आपके हाथ में है। Jesus says, check it out. और यीशु मसीह कहता है कि देखो इसको, Check it out. देखो इसको, Check it out. देखो इसको। Don't think your need is like a mountain. और ऐसा ना समझो कि आपकी जरूरत एक पहाड़ के समान I've है। already blessed you. और मैंने आपको आशीष दिया है, I've already blessed you. मैंने आपको आशीष दिया है। Just give me in my hand whatever I have given to you. और मुझे दे दो जो भी आपके पास है वो। Look at heaven and start utilizing it. और स्वर्ग की ओर देखो और उसका उपयोग करना शुरू करो। Start utilizing it.
उसका उपयोग करना शुरू करो। I remember that widow. और मैं याद करता हूँ उस विधवा को। Elijah, the man of God, came into this widow's house. और एलिया जो परमेश्वर का दास है वो इस विधवा के घर पे आया And she had nothing. और उसके पास कुछ भी नहीं She had था the last flour and little oil और remaining. आखिरी आटा और तेल उसके पास जो बचा था। And Elijah said, और एलिया ने कहा make the bread for me and give. कि मेरे को रोटी बना कर दो Give me first by baking the bread of whatever flour you have. और जो भी आपके पास आटा और तेल है उसके द्वारा मुझे पहले रोटी बना कर दो। Widow never thought for a moment. और विधवा ने बिल्कुल भी सोचा नहीं एक Widow never एक क्षण के लिए commented, what भी। about us, me and my son? और विधवा ने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा मैं और मेरे बेटे का क्या What will happen to us? और हमारा क्या होगा। Let me tell you, beloved. मैं आपसे कहना चाहता हूँ Let me प्रियो, tell you, मैं beloved. आपसे कहना चाहता You हूँ have प्रियो, something which God has given to आपके you. पास कुछ है जो परमेश्वर ने आपको दिया है। Why are you running helter and क्यों skelter? आप यहाँ वहाँ भाग रहे हो। Why are you running away from the need? क्यों आप यहाँ वहाँ भाग रहे हो। Why are you saying, Jesus, please take the need away? क्यों आप ये कह रहे हो कि यीशु मसीह जरूरत को लेके चले जा Or send me away from this need, I cannot cope up. या मुझे जरूरत से दूर भेज मैं जो है ये चीज नहीं कर सकता। Let me tell you, faithful is he who has called you, then who is in the world. और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि विश्वास योग्य वो है जिसने आपको बुलाया है। Greater is he who is in you than who is in the world. मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि महान वो है जो आपके अंदर है ना कि जो संसार में है। Hallelujah. Jesus is there inside. यीशु मसीह आपके अंदर है। Jesus is there inside. यीशु मसीह आपके He is अंदर the है bread of life. और वो जो है जीवन की रोटी He है। is the bread of वो life. जीवन की रोटी He है। is the bread of वो life. जीवन की I want रोटी to tell you है। about David. और मैं आपको दाऊद के बारे में कहता David हूँ faced the Goliath. और दाऊद जो है गोलियत का उसने सामना You किया। know what God used, what was there in David's hand? और आपको पता है कि परमेश्वर ने क्या इस्तेमाल किया जो दाऊद के हाथ में था। When David saw the big need, और जब दाऊद ने उस बड़ी जो है जरूरत को देखा Goliath was standing in the front and challenging people of God. और गोलियत खड़ा था वहां पर और परमेश्वर के लोगों को चुनौती दे रहा था। God used what was in the hand of David. और परमेश्वर ने इस्तेमाल किया जो दाऊद के हाथ में था। He was already carrying the sling and the stone. और वो गोलफन को लेके पत्थर और गोलफन को लेके चल रहा था। Yes, what is there in your hand, Jesus will use that. और क्या आपके हाथ में है यीशु मसीह उसका इस्तेमाल करेगा। Don't think nothing is there with you. और ऐसा ना समझे कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। Wherever you are, just stand. जहां पर भी आप वो सिर्फ खड़े रहे Just give the need to Jesus और Christ अपनी जरूरत को यीशु मसीह and की say, ओर God, दें। I know you have already blessed me. और परमेश्वर से कहे कि हाँ परमेश्वर तूने मुझे चंगाई दी है I already carry what I need. और मैं वो चीज लेकर चलता हूँ जिसकी मुझे जरूरत The है। biggest need in the journey is Lord Jesus और Christ. सबसे बड़ी जरूरत सफर में यीशु मसीह की है। Praise God, He has already been given unto us by God the Father who is sitting in heaven. और परमेश्वर पिता को स्तुति हो कि उसने हमें दिया है यीशु मसीह Hallelujah. If the Lord has blessed you today, को। और अगर परमेश्वर ने आपको आशीष दिया if you have come before this Sunday morning with the need, और अगर आप रविवार की सुबह को जरूरत को लेके आए हो आज just see what you have. और सिर्फ देखो आपके पास क्या है। The Lord wants to bless you. परमेश्वर आपको आशीष देना The Lord चाहता wants है। to bless you. परमेश्वर आपको आशीष देना The Lord चाहता wants to है। bless you. परमेश्वर आपको आशीष देना The चाहता Lord है। wants to bless you. परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता Yes, है। God wants you to look out what He has already given. परमेश्वर चाहता है कि आप देख पाओ जो उसने दिया है आपको Just raise both of your hands. और अपने दोनों हाथों को उठाओ। Don't get frustrated, my dear friends. और आप जो है तनाव में ना जाओ, चिंता ना करो। Yes, what is in you is greater than what is in the जो world. आपके अंदर है वो संसार से ज्यादा महान है। I want to tell you, beloved. मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रिय, I want to tell you, beloved. मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रिय। Peace doesn't depend upon the situation. और जो शांति है वो आपकी परिस्थिति के ऊपर निर्भर नहीं करती Peace है। is not what the situation and circumstances you are in. और शांति इस पर निर्भर नहीं करती कि आप कौन से परिस्थिति में हो। Yes, peace is that the problem is not over you. और शांति ये है कि समस्या आपके ऊपर ने हावी नहीं पाया है। Yes, this is the peace. और यही शांति है। Let's raise your right hand. और आइए अपने दोनों दाहिने हाथों को The उठाएं। Lord knows your need. और परमेश्वर आपके जो है जरूरत को जानता है। This is what God speaks. ये परमेश्वर बात करता है। How many loaves do you have? कितने रोटी है आपके पास? Go and look. जाकर देखे, Go and look. जाकर देखे, Go and look. जाकर देखे। 12 basket full. 12 रोटियां 12 टोकरी भर के।
When you get satisfied, जब आप तृप्त हो जाओगे blessing will flow. तो आशीष आएगी। Everyone you have today is God given. और हर एक चीज जो आपके पास है वो परमेश्वर ने दी है। Yes, God has called you. परमेश्वर ने आपको बुलाया, God has equipped you. परमेश्वर ने आपको तैयार किया है And God has sent you. और परमेश्वर ने आपको भेजा Let's है। raise our right hand today. और आइए हम अपने दाहिने हाथ को And I am going to उठाएं pray for you. और मैं आपके लिए प्रार्थना Father करना in heaven, we चाहूंगा। just want to thank you, God, for this very precious time. है स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस मूल्यवान समय के We लिए। just surrender every family which is listening what we are saying, God. और हम हर एक परिवार को परमेश्वर तेरी हाथों में देते हैं जो सुनने God, you have already spoken to their lives. और परमेश्वर हम आशा करते हैं कि तूने उनकी जीवन के The Spirit जीवन of God has द्वारा already बोला है। touched their lives and they came to know what you have to say. और परमेश्वर की आत्मा ने उनकी जीवन को स्पर्श किया है और मैं आशा करता हूँ कि उनको पता लग गया है कि क्या तू उनसे बात करना Lord, चाहता है। help them to look what they carry. परमेश्वर मदद कर परमेश्वर ताकि वो देख पाए कि वो क्या They may लेकर not चल रहे हैं। focus on the need, but they will focus what God has already supplied. और उन्होंने ये नहीं देखा और उन्होंने अपने जरूरत पर नहीं देखा होगा परंतु वो प्रभु वो अपने जरूरत के ऊपर न देखे लेकिन उसके पास देखे जो तूने उनको पहले से दिया है. Yes Lord, we send forth your word to every person. हाँ परमेश्वर हर एक व्यक्ति को तेरा वचन भेजते हैं हम। Yes, do you lack finance? क्या आप जो है आर्थिक समस्या में हो? God says something is balanced with you. परमेश्वर कहता है अभी भी आपके पास कुछ है, Just give it in my hand. मेरे हाथों में दे दो, I will multiply. मैं जो है इसे बहुगुणित करूंगा। God is a God of multiplication. परमेश्वर बहुगुणित करने वाला परमेश्वर Thank you है। God for listening to our prayer today. धन्यवाद परमेश्वर हमें सुनने के लिए। Thank you Lord for blessing Lord every person who is listening. धन्यवाद परमेश्वर हर एक व्यक्ति जो सुन रहा है उसको आशीष देने I के लिए। pray, oh God, Lord, basket full of blessing getting returned back. और मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर की टोकरियां भर के आशीष आए Yes, they may carry back and they may be satisfied. और वो इसे फिर से लेकर जाए और तृप्त हो जाए In Jesus' name, यीशु मसीह के नाम से। amen. आमीन। May the love of God, और परमेश्वर पिता the का grace of our Lord Jesus Christ, यीशु मसीह का and the अनुग्रह communion of the Holy Ghost और पवित्र आत्मा की shall be संगति with us forever and हम ever. सभी के साथ रहे हमेशा हमेशा। Amen and amen. आमीन। If you liked what God said to you, और अगर आपको अच्छा लगा जो परमेश्वर ने कहा आपसे, please put your valuable comment on the YouTube. और आप अपना कमेंट डालें YouTube पे। I want you to share what God has spoken to you और- by sharing this link to someone मैं else. चाहता हूँ कि आप जो है शेयर करें जो परमेश्वर ने आपसे बात किया है और इस वीडियो को शेयर करें दूसरे New Life Fellowship CBD Zone appreciates you for your patience listening. और न्यू लाइफ फेलोशिप सीबीडी जोन जो है वो शुक्रगुजार है कि आप आपने अभी तक सुना है। Thank you. धन्यवाद। Amen. आमीन।